through why innovation and technology is important for doing business, or what is the significance of innovation and technology, so that this particular subject has been attached to your syllabus. Okay, so we'll start with the first unit. uh, you will be looking after the slide which I am sharing to you. Okay, and if required you can take snapshots also. Share, just a minute. Hello, is the slide visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we'll start with the subject. The subject code is 536-31376 of your CSVTU, and name of the subject is Innovation and Technology Management. Okay, now a brief outline of what is there in your syllabus. The first unit describes what is technology, what is technology management, what is management of technology, means how technology is managed in organizations environment or in any nation's environment. Then we will be having the dynamics of technological change and innovation dynamics at firm level. The second thing which or the second unit will deal with the difference between innovation and invention. What is the basic difference between innovation and invention? Then we will go towards the understanding the types of innovation. What is innovation? What are the different types of innovation and how they aid the different business scenarios? The third part will be the innovative strategies. That means how innovation can be adopted in doing business. Okay, in your second unit there are two three very important topics. The first one is concurrent engineering. It is one of the new topics which has been associated with the business. The second one is commercial requisites of a business firm, how a business firm adopts innovation, what are the commercial requisites. And the third part is innovation inspired by nature. That means how or the way which nature has inspired us to adopt innovation. I will give examples. I will give examples so that you can understand how innovation has been inspired by the nature. The third unit and fourth unit will deal with evolution of different type of technology curves, their dynamics. Okay, then the part of technology intelligence, and the unit 5 will deal with some of the topics like intellectual property right, your technology strategy, acquisition and transfer of technology, and funding mechanism for venture capital. That means if you want to start a new business, if you have an innovative idea, how you can start a new business. Okay, so moving on to the unit 1 of this particular syllabus, we have the first topic, basics of technology management. Then we have management of technology, technology life cycle, technological environment, technological change, dynamics of technological change, and science and technology in India. What is the level of technology which we have adopted in India? So before starting anything, let's talk about what is innovation. Something new, a new idea, method, approach, or a device can be termed as innovation. Okay, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? Yes, sir. Yes, है sir. ना? Yes, Yes, अगर sir. sir. मैं इनोवेशन को एकदम सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं कि व्हाट इज इनोवेशन, सो द easiest or the simplest form of definition is innovation is to try something in a new manner. Okay, to inculcate new ideas in a existing business. Okay, to
find out new ways to serve customers, to serve stakeholders. Okay, so we will take some of the examples from our daily life to understand innovation and its implication in business. Okay, so we'll start with uh, early 90s. We were having radios. हम सभी के घर में रेडियो था. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. 90s में 1920 1930 के दशक में हम सभी के पास जो है घरों में रेडियो था. कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये रेडियो जिससे हमें सिर्फ आवाज मिलता है वो कन्वर्ट होकर के एक ऐसे रेडियो में चेंज हो जाएगा जिसमें पिक्चर भी दिख सके. ठीक है. 1930s 1940s में रेडियो जो है वो एब्सोल्यूशन की तरफ मूव करने लगा और जो मार्केट में नई प्रोडक्ट के रूप में हमको दिखने लगी, दैट प्रोडक्ट वाज टेलीविजन. इन 1940s television started taking the existing market of radios and it started with the black and white televisions, ठीक है, with cathode rays that was then converted into colored pictures. From colored pictures of this cathode ray tube type of television, we moved to plasma television. From plasma television, okay, just a minute. Guha sir will like to talk with you. Just a minute. सर उतर के छोड़. आवाज आएगी? हाँ, आप, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए सर. हेलो. Good morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग सर. Good morning, sir. Good morning, सर बोलिए सर, आप सुन रहे हैं बच्चे. गुड मॉर्निंग. Good morning to you. We started with this online classes, and I hope everybody is safe. And if you do have any technical problem, you mail to concerned faculty members, particularly the subject faculty. If you do have any problem with any subject, and you please be attentive in the class because your attendance is being marked. Okay, online. दे आर राइटिंग. ठीक है सर, यस बोल रहे हैं. See, this is the situation. If you are listening, the situations. This is third semester. So it's like if you do have any problem with the specialization, because compulsory paper, I think there will be no problem. Regarding the specialization, if you do have any doubt, हाँ हाँ सर सुन रहे हैं लोग. if you do have any doubt in the, now you can ask to the direct to mail me out. There were not many phone calls regarding change of specialization subject. Please avoid this kind of thing because we have already put your database in the university. I hope you have understood, okay? Because daily there will be one, at least minimum one subject specialization, either 3 or 4. Okay? And you go through the syllabus because things will come up shortly. Everything will be okay. Okay, don't try to be panic. All the assignments, tutorial which is given by the concerned faculty members, you please do it and post it as directed. Okay. ठीक है? Yes, sir. Yes sir, they are telling us. Actually, हाँ, हमारा खाने लगाना रोज. Okay. I will be in the class in the last period for the CRM. See, final timetable will be shared. Final timetable will be daily shared shortly. Okay. Tomorrow's timetable will be shared today only. Okay. Hello. Yes, sir. Hope you have understood the directives given by Chodi sir regarding your specializations and all. Let's come back to the class. We were discussing that.
अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा कि आज जो अटेंडेंस है ना आपकी, कि आप क्लास में कितनी देर हैं प्रेजेंट, ये ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। मैं आपका जो डेटाबेस है उसको ऑनलाइन अटेंडेंस के रूप में यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, तो आपको क्लास पूरी टाइम अटेंड करना है, ओके। सारे टीचर्स के लिए वही है, आप अपना क्लास जो है लीव नहीं करेंगे, नहीं तो आपका अटेंडेंस मिस होगा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. okay, coming back to the class. Yes, sir. Coming back to the class, we were discussing that कि 1920-1930 के दशक में एक प्रोडक्ट हमारे घर पे आया, दैट वाज रेडियो। उसने हमारा जो एंटरटेनमेंट है उसके बारे में सोचने का तरीका ही चेंज कर दिया। लेकिन रेडियो से बढ़ करके 1950 के दशक में टेलीविजन, और टेलीविजन में होने वाली दुनिया भर की क्रांतियां, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट कैथोड रे ट्यूब, कलर्ड कैथोड रे ट्यूब, प्लाज्मा से लेकर के आज जो एलईडी मॉनिटर्स और जो स्मार्ट टीवी हम यूज कर रहे हैं, आप देखिएगा कि ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट जो है उसको हम धीरे धीरे करके अडॉप्ट करते गए और पुरानी चीजों को हमने छोड़ दिया। उसी तरीके से दूसरा अगर पहलू हम इनोवेशन का देखें जिसने हमारे लाइफ को बहुत करीब से पकड़ा आकर के, दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीफोन्स, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द एनालॉग टेलीफोन्स इन 1950, 1950 के दशक में एनालॉग टेलीफोन्स बने, ठीक है। एनालॉग टेलीफोन्स से हम बढ़ करके डिजिटल टेलीफोन्स की तरफ आए। डिजिटल टेलीफोन्स का भी एक दौर रहा लंबे समय का। डिजिटल टेलीफोन्स के हटने के बाद हम जो है आज की डेट में 1990 से मोबाइल फोन का डेवलपमेंट शुरू हुआ। मोबाइल फोन की जो बेसिक फैसिलिटी हमने लेनी शुरू की थी, दैट वाज कि हमारे पास मोबिलिटी था, एक टेलीफोन हम जेब में रख करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए भी बात कर सकते थे। लेकिन आप देखिए, सिर्फ मोबाइल फोन का डेवलपमेंट इनोवेशन नहीं है, बल्कि वो भी इनोवेशन है जिसको मोबाइल फोन को और पावरफुल बनाने के लिए किया गया। आई थिंक 2002 में 0.3 मेगापिक्सल का एक वीजीए कैमरा जो है वो मोबाइल फोन के साथ जब जोड़ दिया गया, तो मोबाइल फोन जो है वो मोबाइल फोन ना रह करके कैमरा बन गया हमारा। ब्लैकबेरी की सर्विसेज आई 2005 में। 2005 में ब्लैकबेरी सर्विसेज ने मोबाइल फोन के दौर में क्रांति ले आई। व्हाट दे डिड, 2005 में उन्होंने ईमेल्स को, इंटरनेट को जो है मोबाइल फोन से एक्सेस करने के लायक बना दिया। उस समय की ये सर्विसेज काफी कॉस्टली थी, हमें अलग से ब्लैकबेरी की सर्विसेज जो है लेनी पड़ती थी और ब्लैकबेरी के हैंडसेट्स में ही ये सर्विस जो है चल पाती थी। आज 2005 से बढ़ते बढ़ते जब हम 2020 के दौर में आए हैं, आप देखिए कि आपका मोबाइल फोन जो है उसमें कितना इनोवेशन हुआ। आप जो चीजें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सोच सकते हैं, वह सारी चीजों को इनोवेशन के माध्यम से आपके मोबाइल फोन में जोड़ दिया गया। अगर आप देखते होंगे, कैलेंडर, वर्ल्ड क्लॉक, इंटरनेट, सोशल मीडिया, आपका कैलेंडर हो गया, फिर हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे उसमें विजेट्स आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल फोन जो है आपके लिए एक छोटा मोटा पोर्टेबल ऑफिस बन गया है। उसमें आप हर तरीके का आज की डेट में जो है, जो ऑफिस में आप चीजें यूज करते थे, ऑटोमेशन की चीजें, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसको यूज कर पा रहे हैं, प्रेजेंटेशंस को रन कर पा रहे हैं। और वहां से लेकर के आज हमारी ये जो क्लास चल रही है, ठीक है, वहां तक ये मोबाइल फोन हमको सपोर्ट करने लगा। दैट मीन्स मोबाइल फोन ने अपने मार्केट को सस्टेन करने के लिए अपने अंदर इतनी सारी नई चीजें जोड़ी। और ये नई चीजें जोड़ने के पीछे लॉजिक यही था कि हम जितने सारी नई चीजें जोड़ेंगे, हमारा जो कस्टमर सेगमेंट है वो धीरे धीरे करके और बड़ा होगा। कुछ और अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में BMW या ऑडी जैसी कंपनी के लिए अगर हम कॉम्पिटिटर ढूंढने की कोशिश करें, तो आपको पता है सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन होगा? BMW और ऑडी के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है, जो 2030 में उसको कॉम्पीट करेगा, दैट इज गूगल। आपको शायद पता ना हो, बट यूएस में, कनाडा में जो गूगल है, उसने ड्राइवरलेस कार की 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रायल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। टेस्ला ने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको यूज करके पुरानी सारी जो कार मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी है उसके लिए कितना बड़ा दीवार खड़ा कर दिया है कि अब इनका भविष्य जो है खतरे में आ गया। दुनिया की सबसे बड़ी कार बनाने की कंपनियां, रोल्स रॉयस, ठीक है, ये सारे लोग जो है अब इस सोच में पड़ गए कि हम 2030 में कंपीट क्या करें, ठीक है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर
उसको यूटिलाइज करके अमेजॉन ने इतना बड़ा आर्टिफिशियल या वर्चुअल मार्केट क्रिएट कर लिया, ओला ने इतना बड़ा वर्चुअल या आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट कर लिया। आप अगर इसके तह पे जाए तो अमेजॉन है क्या? इट इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर का एक ऐसा यूसेज जिसने पूरे मार्केट को वर्चुअल कर दिया। आज पूरे लॉकडाउन के समय में आपने देखा होगा कि आपके घर तक सामान पहुंचता रहा बिना दुकान खोले, ठीक है। ई कॉमर्स ने पूरे बिजनेस करने का जो तरीका था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है ये इनोवेशन है। आई थिंक मैं आपको जो समझाना चाह रहा था आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, ठीक है, कि इनोवेशन क्या है। वो घड़ी जो एक समय हमें समय बताती थी उसको आज हमने इतना इनोवेट कर दिया है कि वो हमारा समय बताता है। जब आप एक कॉस्टली घड़ी खरीदते हो तो आपको पता चलता है कि जो आदमी इस घड़ी को पहना है उसकी स्थिति कैसी है। हमारा हेलो, Yes. आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड सेमेस्टर। आई थिंक यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसी में अगर हम बात करें कि इनोवेशन जो है उससे उसको हम करते कैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में जो हजारों आइडियाज पॉपकॉर्न के जैसे फूटते रहते हैं, हम उनको एक सही रूप देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बड़ा अच्छा एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोटेशन मैंने अपने प्रेजेंटेशन में डाला, वी कैन नॉट सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज व्हेन वी क्रिएट देम। तो जो जिस थिंकिंग से हमारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, सॉल्यूशन उस थिंकिंग से क्रिएट नहीं हो सकते। हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना, बीइंग अ बिजनेसमैन बहुत जरूरी है। जितना आउट ऑफ बॉक्स हम सोच पाएंगे उतना ज्यादा बिजनेस के एवेन्यूज जो है हम मैनेजमेंट वाले क्रिएट कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे प्रेजेंटेशन में एक छोटा सा फोटोग्राफ है, एक छोटी सी चिड़िया किंगफिशर, और उस किंगफिशर के चोंच को दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बुलेट ट्रेन ने कॉपी किया, ठीक है। ये मानते हुए कि किंगफिशर का जो सिर है, जो चोंच है, वो सबसे कम डिस्प्लेसमेंट करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाता है। फॉर एग्जांपल, हवा से पानी के अंदर जाना और मछली को पकड़ करके पानी से हवा में वापस आना, ठीक है। इसमें ये बहुत कम डिस्प्लेसमेंट जो है उसको क्रिएट कर रहा था। उस किंगफिशर की चोंच को उठा करके लोगों ने बुलेट ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। तो हम अपने आसपास के जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे बहुत सारे इनोवेशंस के बारे में सोच सकते हैं, और इन इनोवेशंस को जो है हम अपने बिजनेस में जैसे जैसे अपनाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा बिजनेस जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। अब इनोवेशन के साथ हमारे इस सब्जेक्ट का दूसरा पहलू है टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर हम टेक्नोलॉजी को समझाने की कोशिश करें, द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद क्रिएशन ऑफ टेक्निकल मीन्स, ठीक है, वो ब्रांच ऑफ नॉलेज जो कि टेक्निकल मीन्स को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, हम उसका टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। और उसका बहुत क्लोज रिलेवेंस जो है हमारे लाइफ के साथ होता है। मैंने टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए 4-5 अलग अलग डेफिनेशन को यूज किया है। टेक्नोलॉजी एज अ ऑब्जेक्ट, वो सारे मशीन, इक्विपमेंट, वेपन, अप्लायंसेस, फिजिकल डिवाइसेस हमारे लिए क्या है? टेक्नोलॉजी एज ऑब्जेक्ट। टेक्नोलॉजी एज नॉलेज, द नो हाउ बिहाइंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कैसे करके हम जो है जिस जगह पर है उससे ऊपर के स्टेज पे जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी एज एक्टिविटी, स्किल, मेथड, प्रोसीजर, रूटीन्स, किस तरीके से जो है हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं नए जो चैलेंजेस हैं उसको मीट करने के लिए। टेक्नोलॉजी एज अ प्रोसेस, बिगिन विद अ नीड, एक नीड के साथ शुरू हो रहा है और एक एंड के साथ, एक सॉल्यूशन के साथ जो है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी एज अ सोशियो कंस्ट्रक्ट, ठीक है, सोशियो टेक्निकल कंस्ट्रक्ट, वो सारी चीजें जो हमारे लाइफ को आसान बनाने के लिए हमारे आसपास है, जिनको आज हम प्रोक्योर कर रहे हैं, उन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन को भी आज हम टेक्नोलॉजी जो है बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी क्रिएट हो कैसे रही है, ठीक है। विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप इसमें एक फोटोग्राफ देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा है, आई कॉल माई इन्वेंशन द व्हील बट सो फार आई हैव बीन अनेबल टू अट्रैक्ट एनी वेंचर। बोलता है कि मैंने जो चीज बनाई मैंने उसका नाम दिया व्हील, लेकिन अभी तक मुझे कोई वेंचर कैपिटलिस्ट जो है, पैसा लगाने वाला जो है, मेरे इस खोज पर नहीं मिला है। देखिए, जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात करते हैं, जब तक आप उसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे
उसका कमर्शियलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। आपने बॉक्स बनाया तो व्हील बोल करके आप उसको बाजार में बेच नहीं पाएंगे, और व्हील बनाया है तो बॉक्स बोल करके उसको बाजार में बेच नहीं पाएंगे। आप जिस चीज को डेवलप कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसको खुद समझिए, और उसके बाद जो प्रोस्पेक्ट कस्टमर है, अगर आप उसको समझाने में सक्सेसफुल होते हैं तो मार्केट में कोई भी चीज बिक सकती है। ठीक है, एक छोटा सा यूट्यूब का वीडियो है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी ने आज की डेट में ना केवल शहरों में, ना केवल जो बड़े जगह है, जो डेवलप्ड नेशन है, वहां पर फर्क कर दिया, बल्कि टेक्नोलॉजी जो है वो आज की डेट में हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे गांव तक में पहुंच करके बहुत सारे जो एवेन्यूज है उनको ओपन कर दिया है। आपने ई चौपाल का नाम सुना है? हेलो? No, sir. ई चौपाल का नाम नहीं सुना? No, sir. No, sir. ओके। No, sir. एक प्रोजेक्ट था जो कि भारत के अंदर एक प्राइवेट कंपनी है आईटीसी, आईटीसी का नाम सुना है? Yes, sir. है ना? Yes, आईटीसी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था ई चौपाल। ठीक है, उसने एक मिसरौद करके जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। ठीक है, और जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उसके बाद की जो सारी चीजें हैं आज की डेट में हिस्ट्री के रूप में हम जो है उसको पढ़ सकते हैं कि गांव गांव तक किस तरीके से इनोवेशन जो है वो पहुंच गया है। इस वीडियो को, एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो है, देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्यों टेक्नोलॉजी को समझना पढ़ना हमारे लिए और जरूरी होता जा रहा है। जस्ट अ मिनट। मैंने अभी तक आपको जो एग्जांपल्स दिए, कुछ समझ में आया? yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. बेटा थोड़ा सा नोट करके रखेंगे क्योंकि हमको आंसर में भी विथ एग्जांपल लिखना होगा। ठीक है, जब हम आंसर लिखेंगे, है ना, या जो प्रेजेंटेशंस में शेयर कर रहा हूं उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, शेयर कर। दिख रहा है वीडियो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Audible sir. है? Yes, sir. ओके, उसको 2 मिनट देखिए। सर ऑडिबल नहीं है वीडियो। जस्ट मिनट, मैं फिर से वीडियो प्ले कर रहा हूं।
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखा बेटा आपने ई चौपाल? Yes, sir. ई चौपाल जो है वो आईटीसी का एक ऐसा प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसमें आईटीसी ने देखा कि भारत का जो प्राइमरी सेक्टर है दैट इज एग्रीकल्चर, ठीक है, और एग्रीकल्चर होने के बाद भी भारत में एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा पुअर थी, ठीक है। तो क्या किया जाए कि एग्रीकल्चर का जो कंडीशन है उसमें बेटरमेंट हो सके। तो उसने देखा कि आज की डेट में जो किसान है वो कहां पर लैग कर रहे हैं, ठीक है, और आईटीसी ने ये ढूंढ करके निकाला कि जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो है दैट इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस चीज का? इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ वेदर, द टाइप ऑफ सॉइल, द टाइप ऑफ क्लाइमेट which they have and the type of climate which is suitable to grow different type of crops. आईटीसी ने कुछ ने जो है इंटरनेट और कंप्यूटर्स को यूज किया और मिसरौत से शुरू करके आज लगभग 50,000 गांव में उसने छोटे छोटे इंटरनेट बेस्ड चौपाल बनाए जहां पर कंप्यूटर लगाए, जिससे कि किसान डायरेक्टली इंटरेक्ट करने लगा। वो सिर्फ अपने जमीन के बारे में बताता था, अपने जगह के बारे में बताता था, ये आइडेंटिफाई करते थे कि उस जगह का वेदर कैसा है। जमीन जो है उसको टेस्ट करा करके हम ढूंढते थे कि उसमें कौन से मिनरल्स जो है वो ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। और आईटीसी ने सिर्फ ये सजेस्ट करना चालू किया कि क्या लगाया जाए जमीन पे तो फसल जो है वो अच्छी होगी। तो सबसे पहला जो ई चौपाल चालू हुआ था, ये चालू हुआ था सोयाबीन से। पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन का बम्पर फसल जो है वो दिखा आईटीसी के इस प्रोजेक्ट के बाद। फिर वो जो है व्हीट पर मूव किए, ठीक है, वहां से मूव करते करते आज की डेट में कॉफी का चौपाल है, फिशरीज का चौपाल है, ठीक है। आज आईटीसी जो है वो ई चौपाल से बढ़ करके चौपाल सागर करके नए कंसेप्ट पे आ गया, जहां पर एक तरफ वो एग्रीकल्चर करने के लिए इक्विपमेंट्स और अच्छे बीज बेच रहा है और दूसरे तरफ आईटीसी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को उठाता है उसको प्रोसेस करके जिन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है उसको मार्केट में वहां से उठा करके बेच रहा है। आपने आशीर्वाद आटे का नाम सुना है? आशीर्वाद इज अ प्रोडक्ट ऑफ आईटीसी, ठीक है। Yes, sir. बिंगो का नाम सुना है? Yes, sir. बिंगो का नाम सुना है? बिंगो इज अ प्रोडक्ट ऑफ आईटीसी। तो एक तरफ वो गांव में जाकर के पहले तो गांव के लोगों की अर्निंग बढ़ाया, ठीक है, इनोवेशन यूज करके, और उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स को खरीद करके उनकी जो अच्छी फसल है उसको खरीद करके उसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पैक किया। नेशनल लेवल पे भी हम उसको यूज कर रहे हैं और आज इंटरनेशनल लेवल पे भी आईटीसी उन्हीं प्रोडक्ट्स को उठा करके एक्सपोर्ट कर पा रहा है। आज हमारे ओवरऑल ट्रेड का आईटीसी जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है, जिसको एक छोटे से प्रोजेक्ट ई चौपाल से उसने शुरू किया था और आज की डेट में वो एफएमसीजी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमें दिखता है। इसका मतलब क्या? ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए, चाहे वो मोबाइल फोन के हो, चाहे वो रेडियो के हो, चाहे टेलीविजन के हो, चाहे ऑडी कार और गूगल के बीच के कंपटीशन के हो, हमें ये चीज सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आज 2020 में जो चीजें डोमिनेट कर रही हैं मार्केट को वो 2030 में डोमिनेट नहीं करेंगी। आज 2020 में जो पढ़ाई डोमिनेट कर रहा है टीचिंग इंडस्ट्री को, वो 2030 में उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हमें करना क्या है? हमें नए चीजों को अडॉप्ट करने के बारे में सोचना है और बिजनेस के लिए नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के बारे में सोचना है। अब ये सोचना किस तरीके से है? हम आप सभी के दिमाग में हजारों लाखों आइडियाज जो है वो पॉपकॉर्न के रूप में फूटते रहते हैं। बिल्कुल कंटिन्यूअसली हमारे दिमाग में जो है नए आइडियाज आते रहते हैं। दिक्कत ये होती है बेटा कि ये जो आइडियाज आते हैं हम उसको कहीं पर नोट नहीं करते, ठीक है। ये जो आइडियाज आते हैं वो एक क्षण के लिए हमारे दिमाग में आते हैं और दूसरे ही क्षण हमारे दिमाग से बाहर चले जाते हैं। हम फिर किसी नई चीज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इनोवेशन तब पॉसिबल है जब हर दिमाग में आने वाले आइडिया को हम क्या करें, उसको नोट करें कहीं पर, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट टेक्नोलॉजी मैनेज करने के लिए जो है दैट इज आइडिया जनरेशन। और ये होगा कैसे? ये होगा सिर्फ इमेजिनेशन से, ठीक है। दो तरीके के बिजनेस को आज हम डिफाइन करते हैं। एक होता है एक्सपीरियंस बेस्ड बिजनेस, जो बिजनेस चला आ रहा है उसको मैनेज करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। लेकिन दूसरा जो पार्ट है बिजनेस का दैट इज इमेजिनेशन बेस्ड बिजनेस। व्हाट नेक्स्ट? 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा? ये इमेजिनेशन ही है
जिसने आज हमारे बिजनेस को 1900 से 2000 के दशक में एक अलग स्थिति में रखा था और 2021 की तरफ जाते हुए हमारा बिजनेस जो है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो आपके दिमाग में आने वाले हर आइडिया को अगर आप कहीं पर नोट करना शुरू कर दें, आप खुद देखेंगे कि आपने अपने आसपास में चीजों को मैनेज करने के लिए बहुत सारे इनोवेटिव थॉट्स को एक्यूमुलेट कर लिया है और उसको यूज कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि एक आइडिया जब हमारे दिमाग में आ जाता है तो उसका वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, वेरिफिकेशन किस तरीके से? कुछ लोगों से कंसल्ट करके कि क्या ये आइडिया सेलेबल है, क्या इस आइडिया का आपको भविष्य समझ में आता है। और अगर आपको पॉजिटिव वाइब्स अपने आस पड़ोस से मिलने लगता है, अगर आपको लगता है कि आपका पड़ोसी जो है वो बता रहा है कि ये आइडिया भविष्य में सेल हो सकता है, तो आप उस आइडिया को फिर धीरे धीरे करके बढ़ाना चालू कर दें। आपने पेपर में पढ़ा होगा, बीआईटी का एक स्टूडेंट जो टिकटॉक के अगेंस्ट में एक ऐप बनाया, ठीक है, आज करोड़ों में उसकी जो कंपनी है उसकी रेटिंग है, ठीक है, करोड़ों रुपए जो है वो कंपनी कमा रही है। एक छोटा सा आइडिया था, जब टिकटॉक मार्केट को डोमिनेट कर रहा था उसके इस प्रोजेक्ट का कोई वैल्यू नहीं था। जिस दिन टिकटॉक को बंद करने की बात हुई, आज इंडिया लेवल पे लोग जो है उसको डाउनलोड करना शुरू कर दिए। करोड़ों लोग एक आइडिया को डाउनलोड करके उसकी कंपनी जो भिलाई स्मृति नगर में चलती है उसको आज एक वर्ल्ड रिनोन्ड कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दे रहे। ठीक है, तो जैसे ही ये आइडिया वेरीफाई हो जाए, ठीक है, उसके बाद का जो पार्ट है दैट इज एप्लीकेशन। उस आइडिया को एक कन्वर्टेबल प्रोसेस में या एक कन्वर्टेबल प्रोडक्ट में हम चेंज कर दे। क्यों? जैसे ही हम उसको प्रोडक्ट या प्रोसेस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसका कमर्शियलाइजेशन जो है वो पॉसिबल होगा। ठीक है, हेलो, यस सर। ओके, अब जो है हमने जो 2-3 चीजें अभी डिस्कस की है, आपको अगर इसमें से कुछ लगता है कि पूछना है तो आप पूछिए। हमने आज सिर्फ जो आपका ये सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया, 2 चीजें बताई है। पहला है इनोवेशन, उसका इंपॉर्टेंस, और दूसरा है टेक्नोलॉजी और किस तरीके से टेक्नोलॉजी को हम मैनेज करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, जो चीजें मैंने अभी बोली है, अगर कोई कंट्राडिक्टरी थॉट आपके दिमाग में आ रही है तो प्लीज उसको शेयर करें। पीयूष? यस सर। हाँ भाई, कोई ऐसा डाउट? अब अनम्यूट कर लीजिए आप लोग, और अगर कोई डाउट आपको लग रहा है तो प्लीज डिस्कस करें, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स ऑफ योर 3rd सेमेस्टर। ठीक है, यहाँ पर सारी नई चीजें हमको पढ़ने और समझने का मौका मिलेगा। ओके सर, जो ई चौपाल था वो सिर्फ मध्य प्रदेश में है कि ऑल ओवर इंडिया में? अभी नहीं बेटा, वो शुरुआत तो मध्य प्रदेश से ही हुआ। सतना जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें मिसरौद, उसके आसपास की कोई जगह है जहां पर इन्होंने पहला चौपाल लगाया था। लेकिन आज की डेट में आईटीसी का ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरे इंडिया पे चल रहा है। ठीक है, कुन्नूर जो कॉफी ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, जहां जहां पर नए नए हम अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं जिसका एग्रीकल्चर करते हैं, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से जिनको ग्रो करते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स आज ई चौपाल जो है वो कवर करना शुरू कर दिया। फिशरीज के अंदर ई चौपाल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वो सारी जो फिशरीज मतलब फिशेज हैं जो कॉस्टली बिकती हैं, उनको किस तरीके से फार्म किया जाए, ठीक है, उनको किस तरीके से वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में बेचा जाए, उसमें भी ई चौपाल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ई चौपाल आज की डेट में ग्लोबल मींस फर्म के रूप में बिजनेस कर रहा है। और हालांकि इसकी जो शुरुआत है वो बिल्कुल रूरल इंडिया मींस एमपी को अगर हम देखें तो एक एवरेज एजुकेशन या बिलो एवरेज एजुकेशन फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रिक्ट के रूप में हमें दिखता है, और वहां से उठा करके आज एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे आने वाला जो हमारा ये बिजनेस है वो कन्वर्ट हो गया सिर्फ एक इनोवेटिव आइडिया से। ओके, तो ई चौपाल आज के डेट में जो है वो एक बहुत बड़े बिजनेस के रूप में कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी इकोनॉमी को। और ऐसे बहुत से छोटे बड़े बिजनेस है। ई चौपाल तो मैंने एक एग्जांपल के रूप में लिया, ठीक है, जो काम कर रहा है। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो इस तरीके से बिल्कुल स्क्रैचेस से खुल करके आज अरबों रुपए के बिजनेस में कन्वर्ट हो गए। अमेज़न को देख लीजिए, एक छोटा सॉफ्टवेयर ही था, ठीक है,
जिसने ई कॉमर्स का जो कंसेप्ट है उसको यूज किया, और आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करता, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके अरबों रुपए का प्रॉफिट बुक करने वाला कंपनी अमेजोन। ठीक है, तो ये जो थॉट है ये इनोवेशन है। ठीक है, और इस थॉट को प्रोपोगेट करने के लिए जो चीज हम यूज करेंगे वो टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके, होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। यस सर। Yes, sir. Yes. यस सर। हाँ बेटा, यस सर। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ओके, तो मैं ये सेशन ऑफ करता हूं। ठीक है, ओके सर। अभी आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए जो है नए ग्रुप में जुड़िए। ठीक है, टाइम टेबल दिया है उसके हिसाब से, है ना? यस सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. इससे डिस्कनेक्ट हो जाइए आप लोग और नए क्लास में जुड़िए। सर मेरे को पूछना था एक चीज।